ચેનલ ઓફ વડોદરા। ભગવાન મહાવીર નિર્માણના 2550 વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ઓફ રિલિજિયન્સ ફોર પીસના સંજીવ જૈન તથા ટેમ્પલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનના કે મર્ચન્ટે સંકલન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દિલ્હીમાં સીડી દેશમુખ મેમોરિયલ ઓડિટોરિયમ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં જૈનાચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સૂરી મહારાજે પ્રસ્તાવના કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરામાંથી યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સભ્ય દીપક શાહ ભગવાન મહાવીરે બતાવેલા સિદ્ધાંતોને જો જીવનમાં ઉતારવામાં આવે તો બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય છે તેમ જણાવ્યું હતું। આ ધર્મ સભામાં બિશપ ફાધર અનિલ જોસેફ થોમસે કપાળ પર તિલક લગાવી આ દેશની પરંપરા છે તેમ જણાવ્યું હતું। દરમિયાનમાં વીપીસી અને વાજપેયી સરકારના પૂર્વ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી સોમપાલ શાસ્ત્રી આર્ય સમાજ તરફે વિચારો રજૂ કર્યા હતા। તેમનો તથા પારસી ડોક્ટર કામાનો સંદેશો પ્રોજેક્ટર સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવ્યો હતો। સ્વામી સર્વલોકાનંદજી રામકૃષ્ણ મિશનમાંથી પધારી મહાવીરના સિદ્ધાંતોની હાલમાં પણ એટલી જ જરૂરિયાત છે તેમ જણાવ્યું હતું। તો ઇઝરાયલના રોબ્બી ઇઝેકીલીએ યહૂદી ધર્મ પણ મહાવીરના વિચારોથી ખૂબ પ્રભાવિત છે તેમ જણાવ્યું હતું તથા ઉર્મિલ દીદી બ્રહ્માકુમારીમાંથી પધારી મહાવીરની મેડિટેશન પદ્ધતિથી કેવા લાભ થાય છે તેનું પ્રેક્ટિકલ કરી બતાવ્યું હતું। એપીજે અબ્દુલ કલામ એવોર્ડ વિજેતા સોફી રાજ જૈને જગતમાંથી ક્લાઇમેટ ચેન્જની ખરાબ અસરો દૂર કરવા મહાવીરના સિદ્ધાંતો કેવી રીતે કામ કરશે તેમ જણાવ્યું હતું। દરમિયાનમાં વડોદરા એમએસ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર અને તથા અત્યારે દિલ્હી ફાર્માસ્યુટિકલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર રમેશ ગોયલ સાહેબે જણાવ્યું કે ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાંતો પર સંશોધન કરીને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યો છે। ડોક્ટર ધરમચંદ જૈન તીર્થકર મહાવીર યુનિવર્સિટીમાંથી પધારી વર્તમાન સમયમાં ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશોની શું ઉપયોગિતા છે તે વિષય પર વક્તવ્ય આપ્યું હતું તેમ જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भगवान महावीर जी का जो संदेश है, जो उनके उपदेश हैं, वो बहुत ही उपयोगी हैं। आज के जो संदर्भ जो हमारा है हमेशा उपयोगी रहे और विशेषकर आज, क्योंकि हमारे समाज में हम जानते हैं कितनी बुराइयां हैं, कितनी नफरत है और हिंसक घटनाएँ होती रहती हैं और मुल्कों में भी और मुल्कों के बीच। तो इसलिए जो संदेश उन्होंने दिया, त्याग का संदेश, वो नियंत्रण का संदेश, संयम का संदेश और तपस्या का संदेश और जो आज़ादी जो हमको चाहिए अंदर और अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, इस पर दमन करना और एक नया जीवन, स्वर्गीय जीवन, दिव्य जीवन जीना, तो ये जो है जो हमको हमेशा बुलाता है कि हम नए व्यक्ति बन जाएं, वो बहुत ही उपयोगी है उनका संदेश। तो मैं कहता हूँ कि हमको इसके ऊपर और भी ध्यान करना चाहिए और हमेशा इस तरह जो संगोष्ठी है, सर्वधर्म संगोष्ठी है, वो करनी चाहिए। हमने एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे की जो आध्यात्मिक धन दौलत है, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा लेना है। So basically, today is the commemoration of the Lord Mahavir's the deeds for the world and the teaching on ahimsa, which is extremely relevant today, because we see that so much of world wars happening everywhere in the world, and also so much of tensions, border tensions, domestic violence, all this has happened. From this we can see that the Lord Mahavir's teaching, which is extremely relevant today, and it must spread. So in fact the Lord Mahavir and Buddha Shakyamuni, two of them were like contemporaries, and it's so important that the messages must go to the world through the understanding of interdependency of oneself and others. Thank you. भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तो ये सारी जो बातें हैं, जो सिद्धांत है उनकी, आपका आचरण कैसा शुद्ध होना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने कहा कि
हाँ, तो इसके बारे में मैंने कहा कि हमारे यहूदी धर्म भी जो हमारी 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो कहा गया है कि किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की झूठी साक्ष्य नहीं देना और डू नॉट कॉवेट कि जो आपका अपरिग्रह है। तो सारी भावनाएं यहूदी धर्म में भी है। जैसे का आपका क्षमा पर्व होता है, यहूदियों का योम किप्पुर है, उस दिन हम उपवास करते हैं। उसके अलावा यहूदी धर्म में प्रार्थना होती है, उसे एक प्रार्थना होती है उसमें मौन धारण करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर जी ने 12 साल तक तप किया था, उसमें उन्होंने मौन धारण किया था। उसके बाद उन्होंने उपवास की जो महत्वता है यह हम भगवान महावीर से ही सीख सकते हैं। और आपका आचरण संहिता जो है, आपका आचरण कैसे होना चाहिए, या इसकी अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम भगवान महावीर की तरफ से ही सीख सकते हैं। आज के दिन में भगवान महावीर जी का जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। आज का जो माहौल है, जो माहौल से हम भयभीत हैं, माहौल से हम आतंकित हैं, माहौल से हम चंचल हैं, अस्थिर हैं, इसलिए भगवान महावीर जी ने जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्तेय, समता के बारे में जो कहा है उन्हें हमें आत्मसात करना है। चर्चा तो हम करते हैं, बहुत सारे इंटरफेथ, पार्लियामेंट्री रिलीजन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से काम नहीं होगा। उनकी जो वाणी है, महापुरुषों की जो वाणी है, खास करके आज के दिन महावीर भगवान का जो वाणी है, शिक्षा है, उसको हमें आत्मसात करना है, तभी हम सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो केवल कागज में ही रह जाएगा और काम का काम कुछ नहीं होगा। तो आइए हम सब उनकी वाणी को जीवन में उतारें, आत्मसात करें। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी की जितनी भी टीचिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रैक्टिकली आज हम लोग अपने ऊपर निभा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बड़ा सुंदर और सक्षम बना सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी एक टीचिंग है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद में हम खुद को बेहतर कहना और दूसरे को गलत कहना, उस चीज़ से पार हो जाते हैं। हम भी सही, आप भी सही। मगर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो गलत है या हम लोग अपने आप को सही कहने के लिए दूसरे को ये छोटा कर रहे हैं या दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते। इसी टीचिंग को बेसिकली लेकर अगर आज हम चलें तो पूरे विश्व में मैं कहता हूँ कि आतंकवाद, नस्लवाद, जितने भी उग्रवाद हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। आज हमारे राष्ट्र को महावीर स्वामी जी की इस अनेकांतवाद का जो शिक्षा है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो पूरे संसार का संसार में शांति ला सकते हैं, क्योंकि वो अशांति, वो अहिंसा के पहला उपयोग, उनका उपदेश यही है, अहिंसा। उसके अलावा त्याग जो इसमें धर्म में दिया गया है वो भी है, आचरण वो भी जिसे बताया गया है वो बहुत क्लियर है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे जानने को मिला है एजुकेशन है वो है कि इसके अंदर बहुत गहराई की विज्ञान छिपी है और वो ऐसे मोती हैं जो हमारे पूरे देश में अलग ढंग से एक पूरी समृद्धि ला सकते हैं। और ये ज्ञान और विज्ञान का संगम है, ऐसा मेरा मानना है। और जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। बस बुलाया गया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो जो मैंने जैन धर्म के बारे में यहाँ आके जाना, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ, उसमें जो पढ़ता हूँ, तो
जो हमें हमारे गुरुओं ने बताया वही ही स्वामी महावीर जी ने सभी को समझाया, जैसे कि सच पे चलना। तो गुरु नानक पातशाह जी भी यही कहते हैं कि सच पे चलो, और उन्होंने कहा कि किसी को दुख मत पहुंचाओ। ऐसे ही गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई, कि सभी से मित्रता रखो, सभी को मान सत्कार दो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो मेरे को जो जैन समाज की ये जो महावीर जी की शिक्षाएं थी वो सिमिलर लगी काफ़ी। उन्होंने काफ़ी मानवता का सुधार करने के लिए, संसार में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास किए, जो कि उनके लिए बहुत, जैन समाज के लिए भी बहुत असरदार है। सो इतना कहते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ।